संजीव शर्मा जी, आप अनम्यूट करके स्टार्ट करते हैं। जी, आज हम एक बिल्कुल अलग विषय पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। और इस ग्रुप में हमेशा हम कृष्णमूर्ति की बारे में बहुत बात करते रहे हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति की बातों का एक एस्पेक्ट हेल्थ से भी रिलेटेड है। तो आज हम उसको जानने समझने की कुछ कोशिश करेंगे। और दो तीन चीज इसमें बता दूं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष जानकार है और वो दूसरों को बताएगा, बल्कि ये एक आपसी बातचीत है जिसमें हम कुछ खोजबीन करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेरे साथ मेरे मित्र राजेश भी हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उनको नेचर क्योर में बहुत दिलचस्पी है और बड़ा गहरा अध्ययन है उनका। और काफ़ी वो इसकी प्रैक्टिस भी कई सालों से करते रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। और बाकी सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तो सबसे पहले हम एक कृष्णमूर्ति का वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम उस वीडियो को देखने के बाद कुछ मिनट तक शांत बैठेंगे, क्योंकि जब भी हम कृष्णमूर्ति का वीडियो देखते हैं हमारे मन में बात होती है कि ये कहूँ वो कहूँ, ये सवाल पूछूं, इसमें ये सही है ये गलत है। तो कुछ देर हम उस पूरे जो उथल पुथल है उसको शांत हो जाने देंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल आएगा तो हम उसको बाद में साझा करेंगे। उसके तो सबसे पहले हम कृष्णमूर्ति का वीडियो देखते हैं, और ऐसे देखते हैं जैसे हम पहली बार देख रहे हैं, और कुछ भी पहले से पूर्व धारणा बना के नहीं बैठेंगे कृष्णमूर्ति तो ऐसे कहते हैं और कृष्णमूर्ति की बातों का तो ये मतलब होता है। बिल्कुल ऐसे सुने जैसे पहली बार कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं, तो हम उसके नए अर्थ और नई बातों को भी शायद समझ पाए। और ऐसा कोई कृष्णमूर्ति के साथ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में हम लोग एक दूसरे को भी ऐसे ही सुने तो बहुत ही एक आनंददायक परिचर्चा हो पाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत, सभी का स्वागत, और हम शुरू करते हैं कृष्णमूर्ति के वीडियोज। Is there any benefit to the human being in physical illness? Is there any benefit, reward, profit, benefit to the human being in physical illness? You understand? Am I made this question clear? Vous voulez traduire en français? Non, voyons. Then I have to do it in Italian. Écoutez bien. S'il y a un profit d'être malade, bien? Vous avez compris? Bien. Malato. Is there any benefit to the human being in physical illness, in being ill? Now, I put you that question. I'm sure most of us have been ill at one time or another. Either mentally ill, that is brain illness of the brain, which is neurotic, psychopathic, and so on, or physical illness, some organ not functioning properly, and therefore great illness. You may have cancer, terminal, or going to be operated and so on. It's illness. Now just
what is the difference between illness and health? What is health? And what is it to be extraordinarily well? Illness and good health. Right? The question is there any profit, benefit from illness, human illness? What do you think? To that question, speaker would say there is. Sorry. But how you, when you are ill, how your brain is operating, right? What are your reactions, responses? The desire when one is ill to avoid pain, taking a pill quickly, or immediately going to a doctor and say, you know, if you have the money, you pay and he tells you what to do and you go back to bed and get over it. Right? So what is there a benefit from being ill? The speaker says there is. It's either purification of the body, when you have fever, it burns out certain things. And you take a pill to stop that fever. You check it. And you want to quickly get over because you may lose the job, you may, etc., etc. So your intention is to get as quickly as well as possible. Right? That's natural, apparently. Yeah? Vous avez capito? Vous avez compris? Je m'adresse à cet enfant. So, if you are not afraid of illness, then illness had quite a different meaning. The speaker, if I may slightly be personal, was paralyzed for a month in Kashmir, North India. For various reasons, they overdosed the poor chap with antibiotics. Tremendous lot. So, a few days later, he was paralyzed for a month. I thought that is final, right? So there it is. The speaker wasn't frightened. He said, yes, all right, I'm paralyzed for the rest of my life. This actually happened, I'm not exaggerating. They carried me, washed me, and all the rest of it for a whole month. Very concrete. You know what that means? You don't. Fortunately, you don't. So, but if I struggled against it, for God's sake, you follow? What stupid doctors. I'm antibiotic, antibiotic. And so on. I'm struggling against this illness. So it makes it worse. And I've learned nothing from it. Right?
It hasn't cleansed my body. It hasn't benefited. But if I play with it, I have. The speaker has. He has been several times very, very ill. I'm not going into that lesson. But if one is not afraid to remain with it, to stay with it, not immediately rush to a doctor, to a pill. You may have to take it later, but to go at it slowly, patiently, observing what your reactions are, why this craze to be healthy, to have no pain. Then you are resisting the whole thing, right? This self-interest may be one of the factors of illness, right? It may be the true reason for illness. Do you understand what? So, illness, physical illness has certain natural profit, benefit, and so on. हम सभी ने ये वीडियो सुना और अब मैं चाहूँगा कि हम कुछ देर उसके बारे में सोचें शांति से, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मन, स्वास्थ्य और भोजन के आपसी संबंधों को लेकर है। और अभी हमने इसमें कृष्णमूर्ति को सुना, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया। उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और बिंदुओं को प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो शब्द है हमारा स्वास्थ्य है, इसका मतलब क्या है हमारे लिए? अगर इस शब्द की बात करें तो जैसा कि स्पष्ट ही है, इस शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित होना। अब स्वयं में स्थित होने के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो हमको समझ में आता है वो ये है कि हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है और हमारा जो आसपास का वातावरण है, वो उनमें आपस में हार्मनी हो, एक किस्म का संतुलन। और शरीर में खुद को ठीक करने की एक बहुत ही अद्भुत शक्ति है, तो वो शक्ति उसकी बनी रहे। इसके साथ ही साथ जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उनका अपना महत्व है, वो अपने सही स्थान पे हों
और कोई भी एक चीज दूसरे को अपने प्रभाव में ना ले, और अपने ऐसा ना हो कि उसी के प्रभाव से पूरा सब कुछ, उसी के प्रभाव में आ जाए सब कुछ। इसमें जो सबसे जरूरी बात है जो मुझे लगती है वो शायद ये है कि हम मन और देह के संबंध को समझें। अक्सर जब भी बात होती है तो हमको कुछ ऐसा लगता है बात में कि जैसे मन और शरीर कोई अलग अलग चीजें हैं, मन का कुछ अलग अस्तित्व है। ऐसा वास्तव में है नहीं है। इसको हम अपने रोज के जीवन में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मन और शरीर का आपस में बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि अगर देह को कुछ होता है, शरीर को कुछ होता है, तो मन उससे प्रभावित होता है, और मन को कुछ होता है तो शरीर उससे प्रभावित होता है, और दोनों एक दूसरे से कभी भी अछूते नहीं रह पाते। तो अगर हमको स्वास्थ्य के बारे में सोचना है तो मन और देह का संबंध, मुझे लगता है इसको समझना इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसमें एक और बड़ी जरूरी चीज आती है, वो है हमारा भोजन। क्योंकि भोजन को लेकर मुझे लगता है कि जितनी समस्या मनुष्यों को है, शायद इतनी समस्या किसी जीव जंतु किसी को नहीं है। और मनुष्य को भोजन को लेकर इतनी समस्या क्यों हो गई है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि भोजन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो हम सभी जानते हैं कि भोजन हमें जीवन की शक्ति दे रहा है, जीने की शक्ति दे रहा है। और हमारे शरीर को खुद को ठीक करने की जो ताकत है वो भी उसको भोजन उसमें बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। और हमारे शरीर की मेंटेनेंस और उसका ठीक बना रहना, उसके लिए भी हमको भोजन की जरूरत है। तो अब अगर हम ये देखें कि ऐसा क्यों हो गया है कि भोजन हमारे लिए एक समस्या बन गया है। हम ऐसा भोजन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए एक मुसीबत है, एक बोझ है, लेकिन हम उसके बावजूद उस भोजन को करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे भोजन का असर भी हमारे ऊपर किसी ड्रग या कोकेन जैसा होता है। जैसे अगर वो हम नहीं खाएंगे तो हमारा मन ही जो है बड़ा परेशान हो जाएगा, हम बड़े बेचैन हो जाएंगे। तो वास्तव में जो हमारी सेंसेस हैं, अगर वो बहुत एक्टिव हैं, जो हमारी जीभ है वो एक्टिव है, तो हम जो भी खाएंगे उस चीज में हम अद्भुत स्वाद ले सकते हैं। लेकिन बार बार उनके दुरुपयोग से और बाकी हमारे जीवन शैली की वजह से धीरे धीरे हमारे सेंसेस कम होते जाते हैं। और फिर जब हमारे सेंसेस कम होते हैं तो हमको वो जो उसकी फोर्स बढ़ानी पड़ती है जो हम खा रहे हैं या जो हम यूज कर रहे हैं। अब उसकी फोर्स बढ़ाने का सबसे, अब जब हम भोजन की बात करते हैं तो नेचुरली हम उसका टेस्ट इंक्रीज करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, उसमें मसाले डालेंगे, उसमें मिर्च डालेंगे। क्योंकि अगर ये सब नहीं है तो हमारी जीभ उसका स्वाद ही नहीं ले पा रही है। बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हमारे कान अगर सेंसिटिव ना रहे तो हमको बहुत तेज संगीत सुनना पड़ता है, तब हमको उसके बारे में पता चलता है। और फिर इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने शरीर से मिलने वाले सिग्नल, अपने शरीर के जो आने वाले संदेश हैं, उसकी बजाय रिवाज क्या है, हमारी आदत क्या है और हमको किस चीज से मनोरंजन मिल रहा है, उसके लिए भोजन करने लगते हैं। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है मन का अपने ही शरीर पर अत्याचार करना। अब अगर आज के जीवन की बात की जाए तो उसमें सबसे अजीबोगरीब चीज ये है कि हमारे दिन का अधिकांश भाग फाइट और फ्लाइट मोड पर रहते हुए निकल जाता है। छोटी छोटी चीजों से इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी होती है जैसे हमको कोई महायुद्ध लड़ना हो। छोटे से ट्रैफिक जाम में फंसकर भी हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि शरीर को लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है और वो उसके लिए तैयारी करने लगता है। और वो तो तैयारी उसके लिए कर लेता है, भागने के लिए, लड़ने के लिए और पूरी उन एक्सट्रीम सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए, लेकिन हम करते कुछ है नहीं है। नतीजा क्या होता है कि उसकी तैयारी के लिए जितने केमिकल्स निकले थे वो हमारे शरीर में ही घूमते रहते हैं, और फिर नतीजा होता है तरह तरह की बीमारियां। सबसे आज का जो आईटी का जो युग है उसमें एक और चीज बड़ी मजेदार आ गई है, वो है सोशल मीडिया। अब सारा ज्ञान लग रहा है जैसे ब्रह्मांड का सोशल मीडिया पर ही आ गया है, और स्वास्थ्य तो उनके लिए सबसे प्रिय विषय है। आप कोई भी व्हाट्सएप पे जाइए, ग्रुप में जाइए, फेसबुक पे जाइए, आपको सब तरफ बाढ़ मिलेगी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की। ऐसा लग रहा है कि किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सारा काम जो है सोशल मीडिया से ही हो सकता है।
अब ऐसे में व्यक्ति कैसे पता करे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये भी संभव नहीं है कि वो जाए और उनके बारे में पता करे कि कहाँ कहाँ कौन सी ऑथेंटिक रिसर्च हुई है। और जहां तक रिसर्च का सवाल है, वो भी पता करना कि जो ये रिसर्च है ये ईमानदारी से की गई है या किसी को एंडोर्स करने के लिए या किसी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए की गई है, वो पता करना तो और भी मुश्किल है। तो इसमें दो ही चीज मुझे लगता है हमारा हाथ बटा सकती हैं। एक है कि हम अपने शरीर की सुने कि हमारा शरीर क्या करने पर क्या बोलता है, कैसा मैसेज देता है, उसको सुने। और दूसरी बात कॉमन सेंस, मुझे लगता है कि शायद आज के समय में सबसे जरूरी चीज इंसान को जो बचा सकती है वो कॉमन सेंस ही है। जैसे मैंने एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया पर बाढ़ है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पिएंगे तो आपकी खून की नलिकाएं साफ हो जाएंगी। अब ये बात सुनने में बड़ी आकर्षक लग रही है, बट अगर हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो गर्म पानी जो है खून की नलिकाओं में कैसे गर्म होके जाएगा? गर्म पानी हम सभी जानते हैं कि जब पिएंगे तो हमारे आमाशय में जाएगा, और आमाशय से जब वो आगे बढ़ेगा तो उसका तापमान वही होगा जो हमारे शरीर का तापमान है, चाहे हम उसको गर्म पी लें चाहे ठंडा पी लें, क्योंकि आमाशय के अंदर वो इतनी देर रखा रहता है। तो ऐसे में वो क्या उसमें ऐसा जादू होगा कि जब वो हमारी खून की नलियों में जाएगा तो उनको साफ कर देगा? तो इस तरह का अगर हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है काफी कुछ हम समझ सकते हैं। और थोड़ा सा धीमे हो जाएं, एकदम से कुछ पढ़ के उसको अमल में लाने की बजाय थोड़ा उस पर सोच विचार करें। अब जब स्वास्थ्य की बात होगी तो पर्यावरण की बात तो होगी ही होगी। मैं सबसे बेहतरीन खाना खा लूं, सबसे बेहतरीन जीवन जी लूं, सबसे शानदार संसाधन जुटा लूं, लेकिन मेरे अगर आसपास जहर है तो मैं उससे बच नहीं सकता। अगर मेरे जो हवा मेरी जिससे मैं सांस ले रहा हूँ उसमें जहर है तो मैं कैसे बचूंगा? जो पानी पी रहा हूँ उसमें जहर है तो कैसे बचूंगा? जो भोजन खा रहा हूँ वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से भरा हुआ है तो उससे कैसे बचूंगा? तो ये संभव ही नहीं है कि अगर मैं पर्यावरण के बारे में ना सोचूं और स्वस्थ रह पाऊं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं ये सोचता हूं कि मैं कोई एक अलग इंडिविजुअल यूनिट हूं जो पूरे अस्तित्व से अलग थलग अपने ही अहम में खोई हुई है और उसका एक पृथक अस्तित्व है, तो समझ लीजिए कि रोगों की शुरुआत हो गई, क्योंकि वास्तव में अस्तित्व में कुछ भी अलग नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है और सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब एक सबसे बड़ा मिथ जो है या सबसे बड़ी चीज जो आती है लोगों के मन में वो ये आती है, जो अभी कृष्णमूर्ति ने भी जिस बात का उल्लेख किया कि वो बीमार होते ही बहुत बेचैन हो जाते हैं। और यहाँ मैं उस बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें आपको बहुत कोई एक्सट्रीम पेन हो रहा है या आपको बहुत ही ज्यादा कोई परेशानी हो रही है, मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा, या जो गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत ही आपको बचाए जाने की या इंटरवेंशन की जरूरत है। लेकिन मैं सामान्य बीमारी की बात कर रहा हूँ कि आपको हल्का सा 1 या 2 डिग्री बुखार आया, कुछ आपको डायरिया हो गया या थोड़ा हल्का फुल्का आपको दर्द हुआ, तो उस समय पर शरीर से के साथ बातचीत करना, शरीर को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये शरीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी बजाय हम तुरंत ही जो है किसी भी तरह से ये लक्षण चला जाए और मुझे राहत मिल जाए और मैं वापस अपना वही जीवन जी सकूं, इसमें लग जाते हैं। जबकि अगर देखें तो जितनी भी बीमारी हैं वो शरीर कुछ ना कुछ बहुत जरूरी काम उसमें कर रहा होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी कोई पैथी अच्छी है कोई पैथी बुरी है ये सब नहीं कह रहा, हर पैथी का अपना अपना महत्व है और उसका जरूरत होने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि ठीक तो शरीर को ही खुद करना है। अगर शरीर खुद को ठीक करने की प्रवृत्ति छोड़ दे या उसकी उस शक्ति का ह्रास हो जाए तो फिर कोई पैथी उसको नहीं बचा सकती। और इसमें एक सबसे बड़ा भ्रम लोगों को यह है कि जड़ी बूटी तो बड़ी फायदेमंद होती है और उससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। जड़ी बूटी आहार नहीं है, जड़ी बूटियां भोजन नहीं है, जड़ी बूटियों की कुछ महत्व है, कुछ परिस्थितियों में उनकी जरूरत हो सकती है, लेकिन उनको सामान्य आहार के तौर पे अगर हम लेंगे तो हम अपने शरीर को संकट में डालेंगे, क्योंकि जड़ी बूटी भोजन नहीं है। और इसके बारे में वही फिर मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप की बजाय किसी विशेषज्ञ से बात करें तो वो आपको शायद सही जानकारी दे पाएगा। अब सबसे लोग जो होते हैं मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि भोजन जो है वो स्वास्थ्य
का स्रोत है, बिल्कुल है, भोजन स्वास्थ्य का स्रोत है, लेकिन उतना ही जरूरी उपवास भी स्वास्थ्य का स्रोत है। अगर हम सिर्फ सारे टाइम खाते ही खाते रहेंगे तो शरीर सिर्फ उसको पचाता ही रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो बीच बीच में शरीर को राहत देना, आराम देना बहुत जरूरी है। और भोजन को पचाने से आराम देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मनुष्य का इतिहास देखें, आदि मानव से लेके आज तक का, तो आदि मानव को भी लगातार भोजन नहीं मिलता था। उसको एक बार भोजन मिलता था और उसके बाद काफी गैप होते थे और उसको दोबारा फिर भोजन मिलता था। तो ये हमारी बॉडी बनी ही इस हिसाब से है कि वो भोजन करे और फिर उसके बाद उपवास करे, तभी वो उस भोजन को पचा पाएगा, अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। और शरीर का सबसे जरूरी काम जो हीलिंग करना है वो तभी हो पाएगा जब हम भोजन से थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और जो भी फास्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, उपवास की शुरुआत करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज है। देखिए, हम सभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं 10 या 12 घंटे की रात में, उसके बगैर तो हम जी नहीं सकते। अगर हम रात भर खाते रहें तो उसी को थोड़ा 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 बढ़ाते चले। 10 घंटे ही करते हैं तो 12 पे आए, तो 14 पे आए, 16 घंटे तक उसको ले आए, तो ये बहुत ही लाभदायक होगा और हमको उससे कोई कष्ट भी नहीं होगा, हमारे शरीर को कोई जर्क भी नहीं लगेगा। हाँ, कुछ लोग जिनको कुछ खास बीमारी है या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है वो फास्टिंग ना करें, और करनी हो तो पहले अपने डॉक्टर से पूछें और उसके बाद फास्टिंग करें। अब एक चीज आज के युग में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है। मुझे लगता है कि शायद दुनिया की आबादी का 60% 70% हिस्सा विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से जूझ रहा है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो प्रकृति अपने आप बनाती है और उसको हमको कहीं से लेने की जरूरत नहीं होती। जब हमारी त्वचा के ऊपर धूप पड़ती है तो वो बनेगा, लेकिन आज का जो हमारा जीवन है उसमें हमारी त्वचा के साथ धूप का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है, और बहुत बहुत लंबे समय तक हमको धूप नहीं मिल पाती है, और लोग हम बंद कमरों में रहते हैं और धूप जब नहीं मिलती तो विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी किसी भी आहार से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। कुछ आहार हैं जिसमें विटामिन डी होता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन उससे हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति के लिए हमको धूप ही चाहिए। और विटामिन डी सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बचाता, बल्कि हमारे मन को भी ठीक रखता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो धूप लें, जीवन का वरदान है धरती पर धूप। और अगर कभी इसका लेवल कम हो तो सप्लीमेंट लें। इसी तरह से B12 है। B12 हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है वो खुद बना सकते हैं, उनको बाहर से जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह का हम जीवन जीते हैं, हमारे पेट के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो भी बेचारे पीड़ित रहते हैं और उनकी संख्या ठीक नहीं रहती, और उसमें उनका जो आपस में बैलेंस है उनकी कि किस तरह के बैक्टीरिया कितने होने चाहिए वो भी असंतुलित हो गया है। तो उस वजह से भी B12 नहीं बनता। तो B12 भी अपना चेक करें, ये बहुत जरूरी विटामिन है। बहुत सारे लोगों को इसकी कमी होती है और ये हमारी नर्व्स की, हमारे तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इसका लेवल चेक करें और अगर जरूरत हो तो इसका सप्लीमेंट लें। अब एक बात आती है जो बचपन से हमको सुना दी गई है, और कि अगर तुम बहुत सोते हो तो तुम बहुत खराब इंसान हो, और हमने ये नारा भी सुना हुआ है, आराम हराम है। लेकिन वास्तविकता की अगर बात की जाए तो उल्टा है। आराम वरदान है। आराम के बगैर शरीर नहीं चल सकता। शरीर बनाए सिर्फ दो चीजों के लिए, एक काम करने के लिए, एक आराम करने के लिए। और अगर इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाएगा तो शरीर ना काम कर पाएगा ना आराम कर पाएगा। आप देखेंगे कि बहुत थक जाते हैं तो हम सो भी नहीं पाते, और अगर हमारी नींद ठीक नहीं होती तो हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता। एक और चीज आजकल में देखने में आ रही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी के अटैक होते हैं, और इसके साथ साथ कई तरह की मानसिक बीमारियां लोगों को होती हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका एक कारण है कि हमारा मानसिक और शारीरिक श्रम का जो संतुलन है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। आजकल IT सेक्टर में काम करने वाले और दूसरी जगहों पे घरों से काम करने वाले, और ज्यादातर लोगों को अगर देखा जाए तो उनका जो भी नौकरी पेशा लोग हैं
उनका मानसिक श्रम बहुत ज्यादा होता है और शारीरिक श्रम उसकी तुलना में नहीं होता। तो इस वजह से शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वो कई तरह की बीमारियों और संकट में पड़ता है। तो उनको इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है। अब एक बड़ी बात हम दिलचस्प उसको करते हैं कि सेहत से संबंधित बहुत सारे मिथ हैं हमारे बीच में जो बहुत चलते हैं और बड़े लोग उनमें बड़ा गहरा विश्वास भी करते हैं। जैसे पहला मिथ है कि बीमारी बहुत खराब चीज होती है, मतलब बीमारी हो गई तो कोई आफत आ गई, बीमारी आ गई तो पता नहीं कोई कहर टूट पड़ा है, अगर जुकाम भी हो गया है तो ये ठीक हो जाए, मैं एंटी एलर्जिक ले लूं, कुछ भी कर लूं, ठीक कर लूं इसको जल्दी से। जबकि बीमारी में शरीर अपना बहुत जरूरी काम कर रहा है, शरीर अपनी क्लीनिंग कर रहा है, शरीर अपनी सफाई कर रहा है, शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिक जमा हो गए उनको निकालना चाहता है, किसी वजह से टॉक्सिक जमा होने से शरीर के अंदर वायरस की, बैक्टीरिया की, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ गई है, उसको नियंत्रित करना चाहता है। और हमको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी आफत आ गई है। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो लोग इस तरह के सेहत के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, उनको बुखार आता है तो सब लोग उनको ताने देते हैं कि अरे तुम तो इतना ध्यान रखते हो, तुमको भी बुखार आ गया। वो ये नहीं समझ पाते कि बुखार आना कितनी जरूरी चीज है शरीर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है हमको रोज बुखार आता रहे, लेकिन अगर बुखार आए तो उसमें कुछ परेशानी नहीं है, हमको उसको देखना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पहले शरीर को विश्राम की स्थिति में लाएं, शरीर को अपना काम करने दें। जैसे अभी कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि प्ले विद इट। तो बीमारी से घबराने की बजाय बीमारी से थोड़ी दोस्ती की जरूरत है। और यहाँ पे हमको एक समझना पड़ेगा कि एक्यूट बीमारियां क्या हैं और क्रोनिक क्या है। देखिए, हमें कोई बुखार चढ़ गया, डायरिया हो गया, हमको स्नीजिंग, खांसी, जुकाम इस तरह का हो गया, तो ये सारी एक्यूट डिजीज हैं और ये शरीर अपनी क्लीनिंग कर रहा है। और जब ये काम नहीं हो पाता, शरीर अपना काम नहीं कर पाता, तब वो क्रोनिक डिजीज में बनता है। फिर आपको बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, किडनी, ये वो बहुत तरह की बीमारियां फिर आपके सामने आ जाती हैं, उस फिर क्रोनिक बन जाती हैं। तो हम उसको एक्यूट डिजीज में उसको ठीक से हैंडल करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्रोनिक तक वो बात नहीं जाए। एक और दूसरा मिथ आजकल बहुत है कि प्रोटीन की कमी हो गई है, जबकि प्रोटीन, जो भी चीजें हम खाते हैं उसमें 60-70% चीजों में प्रोटीन है। हम गेहूं खा रहे हैं प्रोटीन है, दाल खा रहे हैं प्रोटीन है, चावल खा रहे हैं प्रोटीन है, इवन पालक में भी प्रोटीन है, कोई चीज ऐसी नहीं है इसमें प्रोटीन ना हो। और उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन एक्स लो और ये लो और वो लो, खूब दूध पिया करो। हम ये नहीं समझ पाते कि प्रोटीन इंटेक एक बात है, प्रोटीन को लेना एक बात है, और शरीर द्वारा उसका इस्तेमाल कर पाना ठीक से वो दूसरी बात है। तो जब तक हम ये नहीं ध्यान रखेंगे कि शरीर कैसे प्रोटीन का सही से इस्तेमाल कर सके और शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो इस्तेमाल हो सके, तब तक हम प्रोटीन की कमी से जूझते रहेंगे, चाहे हम कुछ भी खा लें। उल्टे प्रोटीन की अधिक मात्रा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और वो किडनी और दिल पे और यहाँ तक कि मस्तिष्क की अनेक बीमारियों को पैदा करती है। इसी तरह से कैल्शियम भी है। हम जो चीजें खाते हैं उनमें भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का ओवर यूज हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ी हुई है जिसमें शरीर का कैल्शियम यूज हो जाता है, या हमारे अंदर विटामिन डी की मात्रा जो है वो कम है, तो शरीर कैल्शियम की कमी से पीड़ित हो जाएगा और वो बाहर से कैल्शियम लेने से बात नहीं बनेगी जब तक हम इन इश्यूज को नहीं समझेंगे। अब इसमें फिर एक और चीज आती है, कहते हैं कि फिर डॉक्टर को कब दिखाएं। तो ये इसके बारे में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी स्थिति कैसी है। अगर कुछ सीरियस है, अगर कोई गंभीर बात है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, वैद्य को दिखाएं, होम्योपैथ को दिखाएं, जिसपे भी आपकी श्रद्धा हो उसको दिखाएं, वो अलग मामला है। लेकिन 70 से 80% मामलों में आप अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये बीमारी क्यों हो रही है और मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे जीने में क्या गड़बड़ हो रहा है जो ये बीमारी हो रही है। एक और आखिरी बात इसमें बड़ी दिलचस्प है कि अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बहुत कमजोर दिख रहे हो, और इसमें मजेदार बात यह है कि जिसका वेट प्रॉपर होता है उसको कमजोर कहा जाता है और जिसका जो ओवरवेट होता है उसको स्वस्थ कहा जाता है। ये बड़ी मजेदार बात है। तो पहले हम ये पता करें कि एक्चुअली कमजोर होने का मतलब क्या होता है और ओवरवेट होने का क्या मतलब होता है, और जिसको हम कमजोर कह रहे हैं कहीं वही तो सबसे स्वस्थ नहीं है। इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। अब एक बात और इसमें मैं जोड़ देता हूँ, वो है महत्वाकांक्षा या एम्बिशन।
देखिए, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है एम्बिशन के लिए डिजाइन नहीं किया गया। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वर्तमान में रहने के लिए, चीजों को समझने के लिए और उसके हिसाब से रिएक्ट और रेस्पॉन्ड करने के लिए बना हुआ है। इमेजिनरी चीजों को बनाना और उसके लिए भागना, चाहे वो मानसिक रूप से हो चाहे वो शारीरिक रूप से हो, उसके लिए शरीर नहीं बना हुआ है। और अगर हम उसके पीछे महत्वाकांक्षाओं में ज्यादा फंसेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अपने शरीर से संपर्क कट जाएगा और हम बीमारी की तरफ जाएंगे। आखिरी बात जो बहुत जरूरी है वो है कि जो हमारे जीने का तरीका है वो पैटर्न में फंसा हुआ है। हर चीज को हम एक ही ढंग से रोज करते हैं और अगर वो उसमें जरा सा भी हेर फेर हो जाता है तो हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हमको ऑफिस भी जाना है तो हम एक ही रास्ते से जाना चाहते हैं। बिस्तर पे सोना है तो एक ही तरफ, एक ही दिशा में सोना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे को बिस्तर नहीं मिल रहा, मैं तो सो नहीं पा रहा, मेरा तो बिस्तर बदल गया। मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, ना ये कह रहा हूं कि कोई बुरी चीज है, ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। लेकिन हम ये समझ लें कि अगर हमारा ब्रेन है, हमें उसको स्वस्थ रखना है तो हमको उसे चैलेंज देने पड़ेंगे, अपने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पैटर्न तोड़ने से मतलब उन बेसिक चीजों से नहीं है जिनको हमको समय पे करना ही करना होता है, बल्कि पैटर्न से मतलब है कि हम उन चीजों को जिनको अनायास ही मैकेनिकल वे में करते चले जाते हैं उन्हें तोड़ने की जरूरत है। नई चीजों को सीखने की, नया करने की जरूरत है। ये हम करेंगे तो हमारा ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा और नई नई सेल हमारे ब्रेन में बनती रहेगी। तो अभी मैंने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की। राम सर, सर आपके बाद में वो जी। मनोज मित्तल सर को बोलना है सर, मनोज मित्तल सर को। जी उसके मनोज बाद जी बोले, जरूर। मनोज मित्तल सर जी नमस्कार। खैर मेरा जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, मतलब मैं अपना थोड़ा स्वास्थ्य के संबंध में बताता हूँ। करीब 11-12 साल पहले मुझे डायबिटीज थी, हार्ट डिजीज थी और डॉक्टर तो गोली पे गोली लिखते जाते थे। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि बिना दवाइयों के स्वस्थ रहूं। तो फिर मैंने अपना खुद का रिसर्च करना शुरू किया। काफ़ी सोर्सेस, मतलब कई जगहों से मैंने इंफॉर्मेशन ली, उसको समझा और अपनाया अपने आप पे, मतलब एक्सपेरिमेंट किया अपने आप पे। मुझे 1 साल लगा और 1 साल के बाद सारी दवाइयाँ बंद कर पाया और तब से 10-11 साल से मैं बिल्कुल दवाई नहीं लेता और कोई भी बीमारी नहीं है, मतलब डायबिटीज गायब हो गई, हार्ट डिजीज गायब हो गई। तो जो मैंने सीखा है वो अगर मैं बताना चाहूँ, हम अगर नेचर के संग जिए तो स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब एक तो भोजन से है। भोजन वही खाएं जो प्लांट्स, मतलब पौधों से उगा हुआ हो, मतलब प्योर वेजिटेरियन जो बोलते हैं ना। और जो भोजन मतलब जानवरों से है वो बिल्कुल ना अपनाएं, चाहे वो मांस हो या मछली हो या फिर दूध हो। तो जो भी भोजन किसी और जानवर से निकला हो उसे बिल्कुल ना अपनाएं। और इसमें दूध भी है। और जो भोजन फैक्ट्री में बना हो या कोई बेकरी में बना हो उसे ना अपनाएं। जो आप पैकेज फूड जो होते हैं ना, फैक्ट्री में बनते हैं, और ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक्स हैं और इस तरह की चीज, और शराब, बियर, मतलब अल्कोहलिक चीजें ना अपनाएं।
और ये रिफाइंड ऑयल बहुत खराब चीज़ होती है, जो रिफाइंड ऑयल होता है, और उसकी जगह कच्चा तेल यूज़ करें, सरसों का, तिल का कच्चा तेल। मैंने दूध की बात करी थी, दूध में से जो घी निकलता है, देसी घी, वो बहुत स्वस्थ अच्छा रहता है, इट्स वेरी हेल्दी, क्योंकि उसमें जो मिल्क प्रोटीन होती हैं वो उनको निकाल दिया जाता है, और जो हार्मोन्स होते हैं गाय के, उनको भी निकाल दिया जाता है दूध से। तो सिर्फ फैट बचता है, जो मोटापा होता है घी में होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और पके हुए खाने के साथ घी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फल खा रहे हैं या सलाद खा रहे हैं तो फिर घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कच्चे होते हैं। पर आप चावल उबाल के खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, मतलब जो भी पका हुआ खाना होता है उसके संग घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। और नमक भी सेंधा नमक इस्तेमाल करें, जो फैक्ट्री में बना होता है, जो जिसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं, उसको इस्तेमाल ना करें, और चीनी को भी इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह गुड़ है, या जैसे चाय में स्टीविया लीव्स होती हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा होता है, जैसे शर्मा जी ने कहा, धूप बहुत ज़रूरी होती है, और नींद बहुत ज़रूरी होती है। और नींद 10 बजे तक सो जाएं, मतलब जो 10 से लेकर 2 बजे तक का वक्त होता है, 4 घंटे का, वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर को ठीक करने के लिए। और जो रात का भोजन है वो जल्दी खाएं, 7 बजे करीब, और हल्का खाएं। सबसे ज़्यादा भोजन होता है लंच, जो दोपहर को खाते हैं, और रात का खाना हल्का होना चाहिए। तो ये तो हुआ भोजन के बारे में। स्वास्थ्य हमारा तब खराब होता है जब हम या तो गलत चीज़ें खाते हैं, या फिर हम ठीक से सोते नहीं हैं, और धूप कम होती है, और या तो फिर अंदर शरीर के अंदर कंजेशन बोलते हैं ना, जिसे मतलब कुछ रुकावटें हो जाती हैं शरीर के अंदर, वो गलत खाने से, गलत लाइफस्टाइल, मतलब उनकी वजह से। तो उनको फिर दूर करने के लिए अंदर की सफाई करनी पड़ती है, शारीरिक शरीर के अंदर की। कई तरीके होते हैं। कुछ तो शरीर अपने आप को ठीक कर लेता है अगर उसको आराम दिया जाए, जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि उस शरीर को आराम की ज़रूरत होती है, तो अपने आप को ठीक कर पाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई कई सालों से गलत खा रहा है, गलत जी रहा है, मतलब रात को 2-3 बजे सो रहा है, और खाना उटपटांग खा रहा है, जंक फूड जिसे कहते हैं, या फिर ज़्यादा शराब पी रहा है, या मतलब उन चीज़ों के लिए फिर शरीर को भी दिक्कत होती है अपने आप को ठीक करने को, क्योंकि काफ़ी रुकावटें होती हैं जिसको वो हटा नहीं सकता अपने आप। तो उसके लिए उसको शरीर को भी मदद चाहिए होती है, जिसमें आयुर्वेद में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी सारे उपाय हैं जिनसे शरीर को अंदर से साफ किया जा सकता है। और कोई भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर या क्लिनिक के पास अगर जाएं तो वो लोग अंदर की सफाई काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते हैं। और मन की बात है, मन और शरीर का संबंध ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही गहरा है। मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मन भी खुश रहता है, शांत रहता है। और अगर आपका मन परेशानियों से लिपटा हुआ है तो उसका असर शरीर पे भी होता है। तो दोनों को अगर स्वस्थ रहना है तो
अपने विचार को सही रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो मन और शरीर दोनों ही ठीक रहेंगे। और ये मेरे ख्याल से कई गलत फहमियां हैं जिनसे हम अस्वस्थ हो जाते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं दूध बहुत अच्छा है, खूब दूध पियो, या अंडे बहुत अच्छे हैं, खूब अंडे खाओ। तो ये गलत उपाय होते हैं, मतलब गलत चीज़ें बताई जाती हैं जिस पे हम विश्वास कर लेते हैं और उससे स्वास्थ्य खराब रहता है। और जैसे धूप के बारे में भी कहते हैं कि धूप में मत जाओ, सनस्क्रीन लोशन लगाओ। तो ये तो बहुत गलत राय है। ये मेरे ख्याल से जानबूझ के बताई जाती हैं ताकि ज़्यादा लोग बीमार पड़ें और फिर ज़्यादा हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और दवाई की जो कंपनी है उनका ज़्यादा धंधा हो। तो मेरे ख्याल से इसकी जानकारी ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, और या है तो भी गलत जानकारी है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि छोटी से छोटी बीमारी हो तो डॉक्टर दुनिया भर की दवाइयाँ लिख देते हैं, दुनिया भर के टेस्ट लिख देते हैं। उसको जड़ से निकालने की कोशिश नहीं करते, पर जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में सिम्टम सप्रेशन, मतलब जो मेरे को हिंदी का शब्द आ नहीं रहा, सिम्टम बोलते हैं ना, मतलब जो उसके क्या बोलते हैं, बिल्कुल लक्षण होते हैं, लक्षण। हाँ लक्षण हो रही है जी, लक्षण। हाँ। आप अंग्रेजी में भी बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं एक आध शब्द बोल देता हूँ बीच में। तो बेसिकली जो मेडिकल, जो स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन है, वो सिम्टम सप्रेशन के उसमें चलती है। वो अपनाया हुआ है इनने कि आपको दर्द है तो दर्द कम करने की दवाई दे दो, नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली दे दो। मतलब ये तो गलत उपाय है ना। किस वजह से नहीं हो रहा, या किस वजह से दर्द हो रहा है, या किस वजह से नींद नहीं आ रही, उसको पता करके उसको ठीक करना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, और सब लोगों को जल्दी वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं, क्विक हीलिंग, मतलब हाँ कि जल्दी असर हो जाए। हाँ, तो उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। मतलब अब जैसे डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल अगर हाई है तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे एक गोली दे दो, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो पर शुगर हाई क्यों हुआ, मतलब शुगर क्यों बढ़ा, ये कोई जानने की कोशिश नहीं करता और उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इन वजहों से काफ़ी लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। और सारी बीमारियों का इलाज है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे हृदय का रोग हो, चाहे डायबिटीज हो। और जो शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है जिगर, जिसको लिवर कहते हैं। जिगर से आपका पूरा शरीर कंट्रोल होता है, चाहे वो दिल हो, दिमाग हो, फेफड़े हो, क्या आंतियां हो, इंटेस्टाइन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा खेल जिगर का है। और बीमारियां तब आती हैं जब जिगर में कचरा भर जाता है, मतलब ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। जैसे आपके कार के इंजन में या कार्बोरेटर में कचरा अगर चले जाए तो फिर इंजन ठीक से काम नहीं करता। हम पहले ज़माने में जब स्कूटर चलाते थे तो यही होता था कि ठीक से नहीं चल रहा तो मैकेनिक बोलता था साहब कार्बोरेटर साफ करना है। तो इसी तरह ज़्यादातर बीमारियां होती हैं जिगर
के कंजेशन की वजह से जिगर में मतलब कुछ चीजें जम जाती हैं, जिसे बोलते हैं ना कचरा घुस जाता है, कचरा जमा हो जाता है। तो वो सबसे मतलब इट इज द मेन कॉज और इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, चाहे वो कैंसर हो, चाहे दिल का रोग हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, पैरालिसिस हो, चाहे मतलब आँख की बीमारी हो, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे सांस लेने की बीमारी हो, अस्थमा हो, या जो भी बीमारी हैं, अगर आपका जिगर साफ है अंदर से, तो कोई बीमारी आपको तंग नहीं कर सकती। और उसको शरीर को थोड़ा आराम दें तो अपने आप शरीर सारी बीमारियों को ठीक करके दूर कर देता है। तो यही मुझे कहना है एट अ ब्रॉड लेवल। अगर कुछ प्रश्न हो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बहुत बहुत आपने बहुत सारी जरूरी बातें शेयर करी और उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा राजेश जी अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राजेश जी अगर कुछ कहना चाहें तो राजेश जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अच्छे से आ रही है, आप बोलिए। आ रही है अच्छे से। शुक्रिया जी, शुक्रिया संजीव जी मुझको इनवाइट करने के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने जो सारा प्रकाश डाला है बिंदुओं पर। मैं सिर्फ कुछ बातों पे अपनी चर्चा पर स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले अपने बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ कि क्यों मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली। तो मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे वो 25 साल से बीमार चल रहे थे। तो ऐसे माहौल में हम देखते हैं भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कि कुछ मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, अगर आप नेट पे भी सर्च करते थे तो आपको मालूम है जो पहले 10 पेज हैं इंटरनेट पे खोलें तो वो मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन होती है। ये कर लो, वो एलोपैथी वाली इंफॉर्मेशन, ये कर लो, थोड़ा सा फ्रूट ज़्यादा कर लो, थोड़ी सी सैर ज़्यादा कर लो। तो उनसे वो सारी चीज़ों से बात हो नहीं रही थी। तो मैंने फिर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कुछ पढ़ा, कुछ बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। और सबसे जो अहम बात ये थी, वो मैं देखता था कि बीमारी एक तरफ, कोई चीज कुछ हुई बात रहा, कुछ बीपी हुआ वो बात अलग, लेकिन ये जो क्वेश्चन आती थी कि मैं क्या करूं, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, कि सेकंड ओपिनियन लूं कि ना लूं, वो जो हैं ये क्वेश्चंस जो ज्यादा दुखी करते थे, वो ज्यादा उस चीज को बढ़ा देते थे। वो जो डर बैठ जाता था, वो बीमारी को कोई छोटी सी चीज भी हो वो कहीं से कहीं पहुंचा देता था। तब मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च स्टार्ट की। तो जो मैंने उसमें फिर पाया, कुछ नेचर क्योर के बारे में पाया, कुछ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो कुछ एनलाइटनमेंट हुआ इस बारे में, मतलब इन चीज़ों के बारे में। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो जब संजीव जी ने बात की, तो हिंदी में जो शब्द है स्वास्थ्य और इंग्लिश में जो शब्द है हेल्थ, अगर दोनों का आप मतलब देखेंगे, स्वयं में स्थित होना, वो एक तरफ इशारा कर रहा है। जैसे उन्होंने बोला, शरीर और मन का आपस में, शरीर और जो मन का आपस में जो डिवीजन का ना होना, स्वयं में स्थित होना, ये मतलब। और हेल्थ का जो मतलब आया है वो हेल शब्द से आया है, उसका मतलब भी है होल। तो दोनों का जो मतलब है वो एक खास तरफ इंडिकेट कर रहा है। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने भी देखी, उसमें कहीं पे भी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, होलनेस की तरफ इशारा है। तो क्या है ये होलनेस, हमें मालूम है क्या कैसे जो मन है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा का पूरी जो कायनात है, इंक्लूडिंग अवर बॉडी, वह पूरी की पूरी हमेशा हेल्दी रहती है, एक्सेप्ट जो हमारा माइंड है वो
अनहेल्दी हो जाता है, वो ऑर्डर में नहीं रहता, तो वो धीरे धीरे अपने साथ बॉडी को भी खींच लेता है और बॉडी को भी अनहेल्दी बना देता है। क्योंकि मन के शुरुआत में ही, मन के स्टार्ट में ही वो एक देखने वाला और एक जिसको देखा जा रहा है, यानी कि वो सेपरेशन कर लेता है। तो उसी तरह से ये सारी सेपरेशन है, हमारी सारी साइंस में आ गई है, सारी पैथीज में आ गई है, सारी मेडिकल साइंस में आ गई है। हम शरीर को कैसे देखते हैं? शरीर पे अगर बात करें, शरीर को हम ऑर्गन्स में, फिर डिफरेंट सिस्टम्स में बटा देखते हैं, अलग अलग सेल्स में बटा देखते हैं। शरीर में हमारे हाथ हैं, पैर है, नाक है, कान है, दिल है, दिमाग है, इन ऐसी चीज़ों में बटा हुआ देखते हैं। पर क्या हम इस चीज़ को देख पाते हैं कि कोई भी जो अंग है वो इंडिपेंडेंटली बिना शरीर के एग्जिस्ट कर सकता है? कोई हाथ है, वो हम उसको जब उसको हाथ कहते हैं तो वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्शन में हाथ कहते हैं। हाथ को हम अगर शरीर से अलग कर देंगे तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इसलिए जो सारी की सारे शरीर को हम इनडिविजिबल, जिसको हम इंडिविजुअल भी बोलते हैं, उसी तरह से ले सकते हैं। उसी का मतलब जो है होलनेस है। और इस तरह देखते देखते ये देखा गया है, ये जो ऑब्जर्वेशन है कि पूरी की पूरी जो लाइफ है वो आपस में कनेक्टेड है। तभी हम जो प्लांट्स को खा रहे हैं, क्योंकि हमारा आपस में एक नाता है। उनका जो ब्रेथ है वही हमारा ब्रेथ है, और हमारा जो ब्रेथ है वही उनका ब्रेथ बन जाता है। तो एक स्पीशीज के तौर पे भी हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, एक अलग बॉडी के रूप में तो आप बात ही उसकी ना कीजिए। तो इन सब को देखते हुए एक साथ में होलनेस के साथ का जो एक और मतलब मैं देखता हूँ, जो मेरे को जब मैंने नेचर केयर के बारे में पढ़ा तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जैसे हम कहते हैं कि, मैं जल्दी से बात को ख़त्म करूँगा, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जैसे हम इस साइकोलॉजिकल टेरेन में इस बात का देखते हैं और इसका जो महत्व है, नेचर हाइजीन में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है जो काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है, और थोड़ा जिसके बारे में इस वीडियो में भी कृष्णा मूर्ति ने भी बात की और संजीव जी ने भी बात की, कि हेल्थ एंड डिजीज आर वन। ये बहुत ही, जब मैंने इसके बारे में देखा और जाना तो बहुत दरवाजे खुले मन के। इसको भी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? हम सारी जिंदगी डिजीजेस को फाइट करते हैं, और कैसे हम कह सकते हैं कि भी जो डिजीज है वो हेल्थ है? बट ये अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हमें शायद क्लियर होगा कि जो जैसे हमारे पेन होती है, कैसे हम लेते हैं पेन? क्या हम पेन को दूर करना चाहते हैं इमीडिएटली, कोई पिल लेके दूर करना चाहते हैं? पर पेन का कोई खास मतलब है? पेन इज एन इंडिकेशन कि कहीं किसी अंग में कोई हर्ट हुआ है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है। मेरे पैर में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है जस्ट, और वो मेरे को हेल्प कर रहा है। अगर मेरे को कोई पेन ना हो उस समय जब मेरे को फ्रैक्चर हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस पैर का इस्तेमाल करता रहूँगा, और वो क्या होगा उसमें? वो मेरा फ्रैक्चर और खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे पेन है, वैसे ही जो बीमारियां हैं, जो हमारी, जिसको डिजीजेस बोलते हैं, वो उनका अगर संधि विच्छेद करें तो वो डिसईज है। तो उनका जो मतलब है, वैसे जैसे संजीव जी ने बोला, वो क्लींजिंग मैकेनिज्म है, वो बहुत जरूरी है। बिना डिजीज के इंसान का या किसी भी जानवर का किसी भी लाइफ का आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म है, एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, कचरा बढ़ जाता है, जैसे दूसरे वक्ता ने बोला था, तो शरीर उसको निकालने की कोशिश करता है। और एक चीज मैं जस्ट लास्ट में इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि भी जिस शरीर से, जिस अंग से जो
कोई बीमारी जिसे हम बोलते हैं डिजीज प्रकट हो रही है, जरूरी नहीं कि उसका जो जन्म है, जो उसका उद्गम है, जो उसका रूट है, वो उस अंग से हो। हमने जिस अंग से कोई शरीर कोई डिजीज प्रकट हो रही है, उसके हिसाब से हमने बीमारियों के नाम कर दिए हैं। और इस तरह से देखा गया है संसार में, हैरान होंगे कि 10,000 तरह की बीमारियां उन्होंने बोली हैं अलग अलग। जबकि जैसा कि हम साइकोलॉजिकल टेरेन में देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर के हिसाब से डिवीजन स्टार्ट कर दें, या फियर, मेरे को 100 तरीकों से मेरे को फियर होता है, उसके तरीके से डिवीजन स्टार्ट कर दें, या मेरे को दुख 400 तरीकों से होता है, उनके तरीके से उनको डिवीजन करना स्टार्ट कर दें, तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसी उधेड़-बुन में ही रह जाएंगे, उसकी डिटेल्स में ही खो जाएंगे। और जबकि रूट काजेज जो हैं, फियर का मतलब है, फियर मीन्स फियर, उसका किस कारण से है वो अलग बात, वो उसका कोई मतलब नहीं है। डिजायर किस कारण से है, डिजायर किस चीज की है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये मैं जस्ट शेयर करना चाहता था। और लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट, और बाकी तो क्वेश्चंस में बात करेंगे, कि जिसको हम भोजन बोलते हैं, मैं उसको बोलूँगा कि उसका भोजन की बजाय, वो भी एक काउंटर इंट्यूटिव बजाय मैं न्यूट्रिशन बोलूँगा उस शब्द को। क्योंकि मैं इसके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे कि जो भोजन है उससे जरूरी नहीं कि हमें शक्ति मिलती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काउंटर इंट्यूटिव तो है ही है। ये मैं इसको मिथ बोलूँगा कि भोजन से हमें, हमारा प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का, वो भोजन नहीं है। इनफैक्ट जब हम भोजन करते हैं तो आपने सभी ने देखा होगा, तो इमीडिएटली एक डिप इन एनर्जी आता है, हमें थोड़ी सी थकान महसूस होती है, तभी उबासियां आती हैं। तभी जब हम हैवी भोजन करते हैं तो किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई एकदम भोजन करके वो एकदम खेलने के लिए चला गया। इनफैक्ट स्पोर्ट्समैन को भी ऐसे बोला जाता है कि काफी घंटे आपने उपवास करना है, तब आप में एनर्जी आएगी। तो इन बातों में हम बाद में भी इनको आगे ले जाएंगे, करेंगे कि ये कैसे होता है। क्योंकि सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी भोजन लेते हैं हम, हमें भोजन को पचाना होता है। और कई भोजन ऐसे हैं, और ज्यादातर हमारे भोजन ऐसे हैं कि जिनको पचाने में इतनी एनर्जी खत्म होती है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको डाइजेशन करने के लिए, और तब कहीं बाद में जाके थोड़ी सी मतलब उसमें वो आती है। ये ऐसे ही है जैसे कोई प्याज बेचने चला है, उस प्याज का दाम नीचे गिर गया है, और उसको जो मंडी में जाने के लिए ही उसको जो पैसे मिले हैं, वो पैसे देने पड़े हैं, वो प्याज के जो उसने बेचा है उससे नहीं पूरे होते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें हैं। ये हम जब क्वेश्चन आएंगे तब भी इनको ले सकते हैं कभी और। थैंक यू, मैं इतना ही शेयर करना। राजेश जी धन्यवाद, बहुत ही दिलचस्प चर्चा के लिए। मैं अब रविंद्र जी से कहूंगा कि वो अपने को अनम्यूट करें और अपनी बात शेयर करें। यस सर, थैंक यू सो मच। मुझे, मेरी आवाज सुन रहे सभी को सर? आ रही है भाई, अच्छे से आ रही है, बोले आप। Yes, yes, yes. So let me introduce myself first. I'm an assistant professor in one of the reputed college in Maharashtra, Kolhapur district, Pharmacy College. So milk के बारे में थोड़ा knowledge share करना था मेरे को first. तो milk, it is a product which is given by other animals, right? तो हम अगर जंगल में जाए घूमने के लिए तो उधर शेर रहता है, एलिफेंट रहता है, हर जानवर उसकी माँ का दूध पीता रहता है। तो इस दुनिया में खाली मनुष्य प्राणी एक ही है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, गाय का हो या भैंस का हो। तो बेसिकली राजेश सर से पहले मित्तल साहब ने बोला था कि दूध हानिकारक है, तो इस मित्तल साहब
के कमेंट से मैं सहमत हूं, क्योंकि दूध जो हम पीते हैं वो अदर एनिमल का है, गाय का हो, भैंस का, और जो उसमें जो प्रोटीन रहता है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने का जो एंजाइम रहता है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं रहता। तो ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम रहता है वो ह्यूमन बॉडी जो अपनी माँ का दूध पीते वही ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट करता है। अगर हम हमारे बच्चों को या तो हम दूसरे जानवर का, बल्कि गाय का रहने दो, भैंस का रहने दो, नहीं तो अभी ट्रेंड चल रहा है जो देसी गाय का दूध A2 A1 रहता है, किसी भी जानवर का दूध बॉडी को हार्मफुल ही रहता है, क्योंकि अगर वो पी लिया तो उसमें जो प्रोटीन रहता है वो डाइजेस्ट करने का एंजाइम बॉडी में नहीं रहता है, इसलिए बॉडी इटसेल्फ कंसिडर्ड एज अदर फॉरेन बॉडी, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होने चालू करता है हमारे बॉडी में। तो इससे डायबिटीज, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत रहता है। मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना ठीक है, घी, छाछ, ऐसे मिल्क प्रोडक्ट जो प्रोसेस होने के बाद उसमें से प्रोटीन डीनेचर्ड होता है, वो मिल्क प्रोडक्ट लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दीज मिल्क प्रोडक्ट्स आर बेनिफिशियल। लेकिन छोटे बच्चों को या तो बीमार आदमी को मिल्क कंज्यूम करना बहुत डेंजरस है, वो बहुत से बीमारी को वेलकम कर सकता है, क्योंकि हमारे एशियन कंट्री का जो भी ह्यूमन बॉडी जीन्स है, वो जीन जो है वो सेंसिटिव है मिल्क को। ऑलमोस्ट 10% to 20% human population of Asian country will digest the milk. So हमारे इंडियन पीपल्स दे कम्स अंडर एशियन। और एक मैं मित्तल साहब से इस बात से सहमत नहीं हूं कि वेजिटेरियन होना चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी को हर प्रोडक्ट, आइदर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स, हर प्रोडक्ट डाइजेस्ट करने का हैबिट रखना चाहिए, क्योंकि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो रहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, so amino acids which are raw material for building up the proteins, तो प्रोटीन इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि प्रोटीन बॉडी को चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी ही प्रोटीन से बना हुआ है। सेल combine to form tissue combine to form organ to form system and system to form body, so body is made up of proteins। हमारा इम्यून सिस्टम भी डिपेंड प्रोटीन पे करता है। तो प्रोटीन का मैक्सिमम जो सोर्स है वो एनिमल्स है, उसके बाद प्लांट सोर्स से हमें मिलता है। तो एनिमल सोर्स से प्रोटीन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि प्लांट सोर्स में इसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत ही कम मिलते हैं, इसेंशियल जो बॉडी को चाहिए, क्योंकि बॉडी वो खुद नहीं बनाता है अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है। हमारे हार्मोन्स, हमारे एंटीबॉडीज, हमारे एंजाइम्स सब प्रोटीन्स में ही हम पाते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन्स। तो प्रोटीन इज इसेंशियल। सो इसेंशियल अमीनो एसिड लाने के लिए हमें नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, जो मांस से मिलता है, जो एग से मिलता है, जो मच्छी से मिलता है। उसका एक मैं अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जापान में मैक्सिमम प्रायोरिटी फिश को देते हैं, और जापान का एवरेज एक आदमी जीने का जो लाइफ स्पैन है वो 90 to 100 ईयर्स है। तो उधर प्लांट फूड नहीं मिलता है, तो दे आर डिपेंड ऑन, क्योंकि जापान का जो हमने एनवायरनमेंट देखा ना, तो पूरा उनका कंट्री सराउंडेड बाय सी फूड्स। तो सी फूड से उनको बहुत से न्यूट्रिशन मिलता है। ओमेगा 3 रहता है जो हार्ट के लिए अच्छा रहता है, सी फूड सैल्मन फिश में रहता है ओमेगा, जो हार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो फिश फूड खाने से एक रिसर्च पब्लिकेशन में आया कि सी फूड वो ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनका लाइफ ज्यादा रहता है। तो नॉनवेज भी जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना वेज भी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन नॉनवेज ज्यादा खाया तो हार्मफुल इफेक्ट भी रहता है, क्योंकि उससे बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। जहां चाहिए उतना नॉनवेज ठीक है, लेकिन नॉनवेज फूड थोड़ा थोड़ा बॉडी में रहना चाहिए, डाइट में रहना चाहिए, इस ओपिनियन में आता हूं। लेकिन मिल्क जो है वो मिल्क खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अदर एनिमल का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करने का हमारे पास एंजाइम नहीं रहता। लेकिन फिश का रहता है, फिश में अच्छे प्रोटीन रहते हैं, वो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। सब मीट में हम थोड़ा डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डाइट और होता है तो टॉक्सिक रहता है। अगर वो मेडिसिन रहने दो या तो कोई भी डाइट रहने दो, जो भी एक्सेस होता है वो बॉडी के लिए टॉक्सिक ही रहता है। और प्रोटीन के बारे में मैं डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन और भी जो स्पीकर है वो अपने व्यूज शेयर करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। जी और कोई भी मीटिंग में बोल सकता हूँ प्रोटीन का इम्पोर्टेंस। बिल्कुल। इस बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर करी। तो इस पे काफी सारे डिफरेंट व्यूज हैं और हम उनकी चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे इसमें एक सवाल चैट में है जो संध्या जी ने शेयर करा है, जो उन्होंने मन के बारे में पूछा है कि कई बार मन जो है कल्पना करने लगता है और वो कई बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने ऊपर सोचने लगता है। उसको लगता है कि मुझे यही बीमारी हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे मन को कैसे ठीक किया जा सकता है? मुझे लगता है ये बहुत मजेदार और बहुत जरूरी सवाल है। शायद ऐसा हम सभी के साथ होता है। लेकिन इसमें अगर एक बार हम अपने शरीर के साथ अपनी जो मित्रता है उसको कायम कर पाए, यानी हमारा शरीर जो कह रहा है वो हम सुन रहे हैं, और जो हमारा उस शरीर के साथ एक बहुत अच्छा हार्मोनियस, हमारा जब मैं बोलता हूं तो यानी मेरा मतलब है होल है, इसमें मन भी शामिल है, शरीर भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। अगर ये सारे आपस में संतुलन में हैं और मैं इस बात को समझने लगूं कि मेरा शरीर अगर मुझसे जो कह रहा है वो मैं सुनूं, तो मेरा शरीर भी फिर रिस्पॉन्ड करने लगता है और ठीक होने लगता है। और फिर शायद ये समस्या कुछ हद तक कम होती है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी देखूं कि जो ये सोच रहा है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, वो सोर्स क्या है, वो क्या चीज है जो ये सोच रही है। अगर मैं उसको भी देखूं तो उसमें भी बहुत दिलचस्प चीजें सामने आएंगी। तो राजेश जी, क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? राजेश जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी, कुछ संक्षिप्त जी टिप्पणी वो करना जी चाहें? वो मेरे को अनम्यूट नहीं करने दे रहा था सिस्टम जो जी है, इसलिए जी मेरे जी, को हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। जी। तो मैं इसको इस तरह से देता हूँ कि अभी पीछे भी हमारी जो और जो लास्ट वक्ता है वो भी बोल रहे थे, जी तो मन का और शरीर का जो आपस में संबंध है वो मैं तो इसी बात पे लेके आ रहा हूँ कि जो हमारा स्वयं में स्थित होने का मतलब ही यही है कि जो मन और शरीर का आपस में जो है वो तालमेल हो। इनफैक्ट मन ना हो उस सेंस में कि वो उसमें एक्टिविटी ना हो, वो रिएक्ट ना कर रहा हो। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी जो बीमारी है उसकी जो शुरुआत है किसी भी तरह की, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, उसकी शुरुआत सबसे पहले मन में होती है। और तब वो जाके किसी भी एंगल से ले लीजिए, आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमारा शरीर भी बीमार होता है, आप तो एक्सटर्नल इंजरीज को छोड़ दीजिए, वो तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी और, क्योंकि किसी भी एंगल से लीजिए आपकी हम जो खाना खा रहे हैं, जिस तरह से खाना खा रहे हैं, जैसे हम मानते हैं भी सारी चीजें हमारी कंडीशन है, तो उस तरह से हमारा फूड भी कंडीशन है। कैसे हुआ कंडीशन, किस तरह से कौन कौन हमें करवा रहा है, ये सारी बातें उसमें हम इस समय नहीं जा रहे, लेकिन वो कंडीशन है हमारा। मतलब
और जो हमारी कोई चीज, जैसे हम कहते हैं कि कोई शरीर मांग रहा है, मेरी तो ये इच्छा होती है, हम कहते हैं कि मैं वो गंध आ रही थी उसकी समोसों की और मैं समोसों की तरफ खिंच गया। बिल्कुल क्लियर बात है कि जो भी हमारी जो किसी चीज के बारे में इंस्टिंक्ट जिसको बोल रहे हैं, वो हम जो नॉट इंस्टिंक्ट, हमारी जो खींच है किसी चीज के बारे में, वो हमारे माइंड से आ रही है। कोई भी एडिक्शन है किसी चीज के बारे में, वो माइंड से आ रही है, वो शरीर का उससे कोई लेना देना नहीं है। शरीर का, जैसे हम जानवरों में देखें तो जानवर अगर जंगल में है, नॉट दो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उसको कोई हिसाब नहीं है कि उसने कितनी प्रोटीन लेनी है, उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्या खाना है। वो आपने जैसे कहा कि उनका सेंसिस के साथ इतना प्यार का संबंध है, उनकी मित्रता है। वो हर एक जो स्पीशीज है उसकी जो उसका एक सेट फूड होता है, उसकी एक बैंड है होता, तो उसमें वो खाता है। लेकिन हमारा जो है शरीर, वो अपने मन के हिसाब से हमने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो हमने उसको एंटरटेनमेंट का साधन बनाया। अभी तो इतना ही कहूंगा, फिर आगे। सर एक और सर मनोज जी। मनोज मित्तल साहब कुछ बोलना चाहते हो? मनोज जी। सर। हाँ जी, एक सेकंड में वीडियो भी ऑन कर देता हूँ। हाँ, मैं एक चीज पे बोलना चाहूंगा, वो है प्रोटीन। मैंने कई लोगों को सुना प्रोटीन के बारे में बात करते हुए। तो प्रोटीन हमें खाने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन हमें हवा से मिलता है, जो सांस लेते हैं उससे प्रोटीन बनता है शरीर में। जो 4 चीजें होती हैं हवा में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड चौथे कौन सी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब 4 होते हैं। उनसे जब हम सांस लेते हैं तो जो जिगर है उन 4 चीजों से एमिनो एसिड्स बनाता है, और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन को हमें अलग तरीके से खाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सांस लें तो प्रोटीन बनेगा, और अगर जिगर साफ हो तो जिगर को भी स्वस्थ और साफ रहना चाहिए। और प्रोटीन खाने से नहीं मिलता शरीर को, सांस लेने से मिलता है। बस यही मैं कहना चाहूंगा। शक्ति जी कुछ बोलेंगे आप? शक्ति सर वुड यू प्लीज से समथिंग? आप कुछ बोलेंगे क्या? हैं क्या शक्ति जी? बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं मुझे। हाँ तो बोलेंगे फिर। अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रही है। हाँ हाँ, बस ये स्वास्थ्य के संबंध में जो आपने कहा स्व में स्थित होना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके बहुत काफी निहितार्थ हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हैं। उसके एक इम्प्लीकेशन की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कभी कृष्णमूर्ति को पढ़ा था, व्हेन यू आर ईटिंग ईट। तो वो जो एक अटेंशन के साथ जब हम कुछ खाते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसमें वो मैकेनिकल नहीं हो पाता है। मैकेनिकल नहीं हो पाने की वजह से उसका जितना हमको जरूरत होती है उतना शरीर, उस समय शायद शरीर की जो अपनी प्रज्ञा है वो शायद काम करती है, और जैसे ही हम इनअटेंटिव होकर के भोजन करते हैं तो वो एक किस्म से मैकेनिकल होने लगता है, और फिर जो पुराना डर रहा है उस पर हम लौट आते हैं। ऐसा मुझे अनुभव में आता रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और कोई बोलेंगे सर? क्योंकि 7:24 हो गए, 5-6 मिनट ही बचे हैं। सर प्रोटीन के बारे में प्लीज गो अहेड। आप बोलिए सर। मित्तल साहब ने बोला कि ऑक्सीजन
का कन्वर्जन प्रोटीन में होता है. सो दिस इज अ साइंटिफिकली रॉन्ग सेंटेंस. नहीं, आई डिड नॉट से ऑक्सीजन से होता है, मैंने कहा हवा में 4 पदार्थ होते हैं, हाँ उन चारों से होता है. नहीं. Oxygen is one of the richest source of energy. No, Oxygen it's not a question of energy. It is the 4 components of air. चारों को मिला के एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं. मैंने सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं करी थी, 4 पदार्थों के बारे में बात करी थी. वही तो सर बात कर रहा हूं मैं. इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी को नहीं चाहिए वो बॉडी खुद बनाता है. इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें डाइट से मिलता है, बाहर से मिलता है, जो नॉनवेज खाने से मिलता है और वेज खाने से मिलता है. सो इसेंशियल अमीनो एसिड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है. और दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोटीन. हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है. जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन लिया हमने, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अलग रहता है और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए प्रोटीन ही चाहिए. अगर प्रोटीन डाइट हमने नहीं लिया तो हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है. अभी कोविड का फ्लो चल रहा है तो इसमें इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम वैक्सीन भी लिया, समझो वैक्सीन लिया फिर भी कोविड क्यों हुआ? ऑलमोस्ट 50% 25% लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हुआ है, क्योंकि वैक्सीन लिया और बॉडी प्रोटीन डिफिशिएंट है. एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी. एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन को मारता है. एंटीजन इन द सेंस बैक्टीरिया रहता है, टॉक्सिक मटेरियल रहता है, नहीं तो वायरस रहता है. तो बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन से ही बनता है. बॉडी में प्रोटीन रहना ही चाहिए एंटीबॉडी डेवलपमेंट के लिए. बॉडी में ऑलरेडी हमारा बॉडी सिस्टम चलाने के लिए उधर रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोटीन डिफिशियंटी है, प्रोटीन नहीं है. हम खाना नहीं दे रहे बॉडी को, प्रोटीन रिच डाइट नहीं दे रहे. क्योंकि कैसा रहता है, हम डेली वर्क में वियर एंड टेयर होता है, सेल डैमेज होता है, सेल रिपेयर होता है और टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू रिपेयर होता है. इस प्रोसेस में बॉडी को एनर्जी चाहिए और एनर्जी और टिश्यू हीलिंग प्रोसेस के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा काम करता है. हर एक बॉडी रूटीन काम करता रहता है, हार्ट काम करता रहता है, लिवर काम करता रहता है. इस काम में इंजुरी होती है बॉडी को, ऑर्गन इंजुरी होती है, और ऑर्गन इंजुरी होने के बाद वो हीलिंग भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है. वो हीलिंग प्रोसेस में बहुत से प्रोटीन कंज्यूम होता है. तो ये प्रोटीन डेली बेसिस में बॉडी को देना इंपॉर्टेंट रहता है. बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ. इसमें एक्चुअली बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और इसके बारे में बहुत अलग अलग तरह की सोच और मान्यताएं हैं, और ये बहुत थोड़ा सा डिबेटेबल इशू भी है, तो इस पे हम लंबी चर्चा भी कर सकते हैं. इसमें एक बात बस बोलूंगा कि बहुत सारे कंट्री जहाँ पे कोरोना बहुत फैला, वो सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे बहुत हाई प्रोटीन इनटेक है और इसके बावजूद वो लोगों को वहाँ इन्फेक्शन हुआ. तो इसको मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, बट उसमें कुछ मिसिंग लिंक्स हैं और इसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ऐड करनी चाहिए ताकि हम एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर को समझ सकें. तो खैर, वो बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत वो चीजें हैं और ये डिबेट बहुत लंबी चल सकती है. शक्ति जी भी कह रहे हैं कि ये तो डिबेट कभी तक भी चल सकती है. राजेश जी शायद कुछ कहना चाहते हैं. जी जी प्लीज राजेश जी अपने को अनम्यूट कीजिए. शायद वो अपने को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं राजेश जी. जी, मैं जस्ट इस पे बात करना चाहूँगा कि हम इस समय जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे इन चीज़ों में अगर जाएंगे तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है. इनफैक्ट हर एक साल जो है मेडिकल साइंस की जो रिसर्च है नई आ जाती है, तो हम अगर उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे. मैं सिर्फ एक मोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं कि जंगल में जो जानवर हैं, क्या वो हेल्दी नहीं होते हैं क्या? तो
कौन हिसाब रखता है, कौन सा जानवर, कौन सा पंछी, कौन से पौधे हिसाब रखते हैं कि मेरे को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए और कितना फैट चाहिए। तो ये तो हम जो हमारी जो बातें हैं वो सारी एक्सटर्नल वाली बातें हैं। हम मतलब जो बॉडी की खुद की इंटेलिजेंस है, जो मेरा टेक अवे है सारी आज की बात से, कि हम कोई मशीन नहीं है, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है। हमारा शरीर का मतलब है बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ नेचर्स इंटेलिजेंस। उसको मालूम है, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हम हमारा इंसान का क्या योगदान रहता है, ये कहीं से स्पर्म आता है, कहीं से सेल आता है उसका, और सारा का सारा उसका शरीर बन जाता है, दिमाग बन जाता है और लीवर बन जाता है। और क्या बॉडी जो है, क्या शरीर है, उसको मालूम नहीं है भी मैंने कितना प्रोटीन इस मेरे को चाहिए। जब बचपन में शुरू में बच्चा पैदा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग तरह की होती है, 6 महीने बाद अलग तरह की होती है, लेकिन बॉडी सारा हिसाब रखता है और उन्हीं चीजों में, उसी खाने में वो उसको प्रोवाइड करता है। उसमें जुगाड़ की एक बहुत ताकत है, कहीं से कोई चीज नहीं बनती तो कहीं से और ले लेता है। तो उसकी इंटेलिजेंस को देखिए, जितने भी हम साइंस तरक्की कर गई है, इस चीज को देख पाइए। एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है बात कि चांद पे आने के बाद भी आदमी कभी एक बूंद खून की नहीं बना पाया है। यानी इंसान जो है वो लाइफ को कभी नहीं समझ पाया है, जो कैसे उसकी बनतर हुई है। तो इसलिए हम इन चीज़ों में, मतलब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होगी क्या हो कैसे नहीं है, लेकिन हम टेक वे मेरा ये है आज का कि जो बॉडी की इंटेलिजेंस है हम उसको देखें, उसको समझें, उसकी जो अपनी निहित इंटेलिजेंस। थैंक यू। वाघ मारे जी चाहे तो 1 या 2 मिनट में कुछ बात कर लेते हैं, फिर हाँ हम बिल्कुल 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 सर, मैं भी समय समाप्त होने को है तो 1-2 मिनट में समाप्त करना है। वाघमारे सर बिल्कुल आखिरी में लिया है आपने। अच्छा, धन्यवाद। तो 2-3 मिनट में समाप्त कर लें। धन्यवाद। मैं राजेश जी से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे को ये देखना है कि हमारा जो बॉडी इंटेलिजेंस है उससे हमारा ट्यूनिंग कैसा हो और इंडिविजुअल की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो बॉडी इंटेलिजेंस के साथ में ट्यून अप है तो बॉडी खुद उसको बताती है कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जहाँ तक ये प्रोटीन और बाकी मुद्दों का सवाल है, हम देखते हैं कि झाड़ हो या हम हो या एनिमल हो, सब इस प्रकृति से ही एनर्जी लेके और उसी को कन्वर्शन कर रहे हैं। इवन कई साधु महात्मा ऐसे भी है जो कि सिर्फ सोलर एनर्जी के ऊपर भी काफी साल निकाल लेते हैं, या कुछ जरा सा कुछ खा के भी काफी साल निकाल लेते हैं और फिट रहते हैं। तो एक इंटेलिजेंस ऐसा है जो काम कर रहा है हमारे बॉडी और माइंड के अंदर, एक ही इंटेलिजेंस है और उसके बियॉन्ड भी है। तो जिससे जितना संभव हो अपनी इंडिविजुअलिटी को ध्यान रखे, उसको क्या सूट करता है उसकी ओर ध्यान दे, अपनी आदतों पे न जाए। जो उसको हैबिट्स पड़ी हुई है उसकी, जो से पहले वो जो खाता था, जैसे उन्होंने कहा कि समय समय के अनुसार आपकी डिमांड और बॉडी खुद बताती है कि आपको कितना क्या खाना है, क्या लेना है। तो उस हिसाब से अगर वो थोड़ा सा चेंज करते रहे तो उचित होगा। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो बात हो रही है कि नॉनवेज होना जरूरी है या ये होना जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा अगर अपने बॉडी इंटेलिजेंस पे भरोसा करेंगे, उससे ट्यून अप करेंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ बात दूसरी होगी। जो आजकल लोग जंक फूड खाते हैं या जो करते हैं उसकी और उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी कि जंक फूड ना खाएं। और स्वास्थ्यवर्धक जो, जैसा हमारे यहाँ कहा गया, जैसे मैं पर्टिकुलर महाराष्ट्रियन हूँ, पाटिल जी भी महाराष्ट्रियन है, उनको तो मालूम है महाराष्ट्रियन खानों में चटनी और ये सब व्यवस्थित होता था और उसके अपना एक महत्व होता था। तो अगर आप चटनी खाएंगे और दूसरी जो सलाद खाएंगे तो मेरे ख्याल से तो बॉडी अपने आप सब चीजें जो उसको चाहिए वो बना ही लेती है। ये मेरा अनुभव है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वाघमारे समय की प्रज्ञा समाप्त करने की तरफ चली गई है और एक मीटिंग और रख देंगे अपन। और दूसरा मेरा खुद का सोच है कि महाराष्ट्रियन जो थाली रहती है वो अंडा भी खा लेता है और उसमें न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर रहता है, वो मेरा भी विश्वास है। लेकिन सारे विश्वासों को फिर से करने के लिए एक मीटिंग और अपन रखेंगे। मनोज मित्तल साहब ने भी जो बोला है वो प्रॉपरली फिर से अपन उनको सुनेंगे। जो राजेश सर आए हैं या पाटिल साहब आए हैं, अपन एक मीटिंग और रखेंगे, इसमें काफी बात करने की है। सभी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी लग रहा है तो अपन रखेंगे इसको। पर धन्यवाद मनोज मित्तल साहब, शर्मा जी, बाकी जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, नहीं पार्टिसिपेट किया, उनको और विशेष धन्यवाद कि वो समय की प्रज्ञा और व्यक्तिगत समझ से चल रहे होंगे कि जरूरत नहीं है। ये संध्या जी ने बहुत सारी बीच में बातें लिखी, उनको भी धन्यवाद। आप सभी थैंक यू वेरी मच। वी विल डिसाइड। थैंक यू वेरी मच। कमलेश जी, अपनी प्रज्ञा उपयोग करते हुए
इसको समाप्त कर दो। कर रहा हूँ सर।